means it refers to carbon, while hydrate means water. So these substances actually have carbon and they have hydrogen and oxygen in the same ratio as they are in water. That's why the name carbohydrate. Carbo is for carbon, hydrate is for hydrogen and oxygen in the same ratio as in water. So what is the ratio of hydrogen and oxygen in water? H2O. That means 2 is to 1. In carbohydrates, generally you would find hydrogen and oxygen in the same ratio. For example, if you look at glucose, C6H12O6. H12O6 means that there is 2 oxygen, 12, 6, and 1. 2 hydrogen and 1 oxygen. 2 is to 1, the same ratio. If you look at sucrose, for example, C12H22O11. So 22 and 11, H2O, the same ratio as in water. So hydrogen and oxygen are generally in the same ratio as in water, and there is carbon. Carbon is present as the central skeleton of the molecule. Now, before this, we also talked about monomers and polymers, the single units. A single bead is a monomer. The entire tasbih is like the polymer. So monomers are single units that can join up together to make a complex chain. Many monomers, when they join together, making long chains, making complex molecules, the complex molecule is called a polymer. Now, each of these substances that we are going to talk about today, that we have spoken in the beginning, like carbohydrates, proteins, nucleic acids, they are polymers. Lipids are not polymers. You will have to remember this, that lipids are not polymers. Although those are macromolecules, these are big molecules, but these are not polymers. They're not made up of monomers joining together, repeating monomers joining together in a very long chain. When we start with carbohydrates, there are three types or three categories: monosaccharides, disaccharides, and polysaccharides. These are not the examples, these are the types. Mono, the word mono means one, and the word saccharide refers to sugar, one sugar. It is a single unit of carbohydrates. It is also a carbohydrate. Monosaccharides are also carbohydrates. Some people say that monosaccharides join to make up carbohydrates. No, monosaccharides themselves are also carbohydrates, but they can join up to make complex carbohydrates. When two monosaccharides would join, they would form a disaccharide. The disaccharide can be, you have three examples here. When glucose joins with glucose, the reaction between them is called condensation reaction. When two substances are joining together, that is by condensation reaction. And when the two substances are being broken apart, that is hydrolysis. So condensation से दो substances, दो molecules, दो monosaccharides join होते हैं. This is one monosaccharide. This is the second monosaccharide. They join together by condensation reaction and they form maltose. So maltose basically is two glucose molecules, two glucose rings joined together by glycosidic linkage. The bond between them is called glycosidic linkage or the glycosidic bond. Glucose and fructose, when they join together, they make sucrose, which is the table sugar. It is specifically important because this sugar is, first of all, is the table sugar. The one that we use at home is sucrose. Secondly, this is the only example of non-reducing sugar. And you will have to remember this as well. This is an example of non-reducing sugar. That means it won't be, it cannot be tested by Benedict's reagent. Benedict's reagent is generally used for the testing of sugars, but it is only applicable to the reducing sugars like glucose and fructose and galactose and lactose. These are all reducing sugars. But sucrose is a non-reducing sugar. You can't test it with Benedict's reagent. Then many monosaccharides, many glucose molecules can join together to make a large chain, a complex chain that is called a polysaccharide. We have three examples of polysaccharides. We have cellulose, we have starch, and glycogen. Glycogen is the storage substance present in animals.
The animals can store their glucose in the form of glycogen. The plants store their glucose in the form of starch, while cellulose is another glucose polymer, but it is stronger than starch and glycogen. It is used to make the cell walls of plants. Animals do not have the cell walls. In plants, the cell wall is made up of this substance, cellulose. Now you know what cellulose is. It is the polymer of glucose. Many glucose molecules can join together to make cellulose. The fibers of cellulose are basically chains of glucose molecules. Okay, what is the primary purpose of carbohydrates in our body? They are used to the the carbohydrates are used to make energy. In the process of respiration that happens in our mitochondria, the cellular respiration, that basically hydrolyzes glucose. It can hydrolyze other substances. Other materials can also be used as respiratory substrates, but primarily we will use this, the glucose molecules. Okay, moving forward, we have proteins. Proteins are basically made up of amino acids. Amino acids are the single units that can join together. So amino acids are basically the monomers. Now there is a distinction that I want you to learn, I want you to remember. That is between polypeptide and protein. When I say polypeptide, I refer to simply the chain of amino acids. When I say protein, protein means the polypeptide has been folded into a specific 3D structure with a specific shape, and it has a specific purpose. Like an enzyme amylase, for example, is a protein. It's also a polypeptide. It's a chain of amino acids as well, but it is a protein. That means that the chain has been folded into a specific 3D structure, and it has a specific shape, a specific active site, and it has a specific purpose. It breaks down starch into maltose. That is the purpose of amylase. Similarly, insulin is a protein. It is also a polypeptide. It's a single polypeptide, but it is also a protein because it has been folded into a specific shape with a specific purpose, that it controls the blood glucose. That's the purpose of insulin. It controls the blood glucose. So when a polypeptide is folded into a specific shape and it has a specific function, we refer to it as proteins. Polypeptide would simply mean a chain of amino acids. Okay. One protein may have more than one polypeptide. For example, hemoglobin is a protein. You must have heard about hemoglobin. Hemoglobin is a protein that actually has 4 polypeptides, 2 alpha and 2 beta. Hemoglobin is a protein that is present in your red blood cells. This is the protein that binds with oxygen and carries the oxygen around. You have myoglobin in your muscles. So many proteins are made up of more than one polypeptide. They have a quaternary structure as well, which we will talk about later. That means in AS, but uh, proteins and polypeptides. You should remember the distinction between proteins and polypeptides. Polypeptide, simply a chain of amino acids. Protein, when the polypeptide is folded into a specific shape, has a specific function, that is referred to as protein. This is the generic structure of an amino acid. If somebody asks you to draw the general structure of an amino acid, although we have 20 different types, but this is the general structure applicable to all the amino acids that we have. There are 20 different types because the R group, the chain, is different for every amino acid. Rest of the structure is same for all the amino acids. For all 20 of those, the rest of the structure is same. The only difference would be this R group. It would be different for different amino acids. Now, if you look closely, you would see that there is a central carbon which is attached to amino group on one end, and we have discussed it in excretion as well. So there is an amino group here, and there is a carboxylic acid group here. This is called carboxylic acid group. This is called amino group. So we have an amino group and a carboxylic acid group. That means amino acid. That's why they are called amino acid.
Some people may call them amino acid, and that is also okay, but I call it amino acid. When two amino acids join together, they would join together by the same reaction, condensation reaction. And when two amino acids join together, like two glucose molecules joining together by condensation reaction, the glucose molecules make glycosidic linkage. The amino acids make peptide linkage or peptide bond. Peptide bond or peptide linkage. Two amino acids join together to make a dipeptide. Just like two monosaccharides join together to make a disaccharide, two amino acids can join together to make a dipeptide. More than two, more than 10 amino acids, they join together to make a polypeptide. Dipeptide, polypeptide. Just like we have disaccharide and polysaccharide, this particular structure is actually a polypeptide. You can see many different amino acids. With the color, you can see that there are different amino acids here. Same type of amino acids can be used again and again. The orange one has been used 4 times here. The green one has been used twice. Blue has been used thrice. So same amino acid can be repeated again and again. This is a polypeptide. The same polypeptide folds and makes a specific 3D structure. Now we are going to refer to it as protein. Protein also has a polypeptide, but now it has been folded into a specific 3D shape and it has a specific function. So we have peptide bonds here in between the amino acids, joining them together. Two amino acids joining together would make a dipeptide. Dipeptide. And this entire thing is a polypeptide, all with peptide linkages. And when it folds into a specific 3D structure, that is referred to as protein. Each protein has a specific shape. And the shape of the protein is actually very important for its functionality. The shape of protein is essential for its function. Think about any enzyme, for example. You have studied, probably you have studied the lock and key model. So you should know that each enzyme has a specific shape and it has a specific active site, again with a specific particular shape, so that it binds to the substrate with that shape. A substrate with a complementary shape can fit here. If you change the shape of this protein, the substrate would not be able to bind to the active site of the enzyme. If the substrate is unable to bind with the active site, the enzyme won't work. The enzyme can only work if the substrate binds to it, if it forms enzyme substrate complex. When, for example, this is an enzyme, and let's say this is the substrate bonded to its specific active site. When this structure forms, this is called enzyme substrate complex. So enzymes can only work if they have formed enzyme substrate complex. If the substrate does not bind, enzyme won't work. And same is true for insulin. Same is true for antibodies. They have a specific shape and they have to bind to either a receptor or an antigen, respectively. The insulin has to bind a receptor on the surface membrane of, let's say, the liver cells or the muscle cells, so that it can dump the glucose from the blood into the cells. If it doesn't bind, it won't be able to work. If the insulin does not bind to its specific receptor, and if you change the shape of insulin, it won't be able to bind with the receptor. If you change the shape of an antibody is for your immune system. It is part of your immune system released by your B lymphocytes, white blood cells simply. So this is released by white blood cells to bind with the antigen on the surface of, let's say, a bacterium or any other pathogen or any other cell. If the antibody's shape is changed, it won't be able to bind. So the shape of the protein, any protein, is very specific, very important, very essential for its functionality. Okay. Moving forward, we have lipids and
I have written it here that these are not polymers. Never say that lipids are polymers because these are not made up of repeating units of monomers joining together like we have seen in proteins and carbohydrates. No, these are actually made up of two things. The primary or the most important, the most common lipid that we study here is a triglyceride. So a triglyceride is made up of only two things. This is thing number one. This is thing number two. This is a glycerol molecule. Glycerol. A single glycerol molecule joining with three fatty acid chains. You may think कि ये मैंने कीड़े मकोड़े क्यों बनाए हैं यहाँ पे. Actually, this is the structure that represents carbon as the central skeleton. Each corner here represents carbon, which is then bonded to hydrogens. और इसके दूसरे एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन है. अगर मैं एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा फैटी एसिड चेन आपके सामने बनाऊं, दोनों के स्ट्रक्चर बनाता हूं, दोनों बहुत सिंपल है. ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर क्या है? 3 कार्बन्स. And all of these carbons have OH, which is called alcohol group. OH is called alcohol group. So they have OH. And then they have hydrogens. Each carbon is able to make 4 bonds. You have to make sure that सारे carbon की 4 bonds complete हो चुकी हैं. Very simple structure of glycerol. आपने 3 carbons draw किए, तीनों के साथ OH draw किया और बाकी सारी bonds हाइड्रोजन की. सिंपल. ये आपका ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हो गया. अच्छा, फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड में वही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है that we have studied in amino acids. This carboxylic acid group, the same carboxylic acid group, अगर आप यहां पर इस शेप में बना लें, it still means the same thing. और इसके साथ ये जो हम कॉर्नर्स बनाते हैं, ये कॉर्नर्स क्या है? बेसिकली कार्बन है. तो आप सिंपली कार्बन भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो. और आप चाहे तो स्ट्रेट भी बना सकते हैं. लाजमी नहीं है कि आप ऐसे बनाएं जिस तरह हम बना रहे हैं. ये तो कॉर्नर्स बनाने के लिए होता है ताकि हाइड्रोजन की रिप्रेजेंटेशन हो सके. बाकी जितनी बॉन्ड्स बचेंगी वो सारी हाइड्रोजन्स की. जितनी रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन्स की. ये स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने के लिए नहीं आता. ये मैं सिर्फ रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये एक्चुअली कीड़े मकोड़े क्यों बनाए गए हैं. यहाँ पे इसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इस तरह से, और बाकी सारे कार्बन्स हैं. Okay, so lipids are made up of two substances, two things, glycerol and fatty acid. Lipids are not polymers like proteins. Proteins are polymers because they are made up of these monomers. This is the generic structure of amino acid. Many amino acids would join together to make proteins, to make polypeptides. So protein is a polymer. When many monomers join together to make a larger substance, to make a complex chain, the complex chain is called a polymer. So because protein is made up of many monomers, many amino acids joining together by peptide bond, the proteins are polymers. And the amino acid is the monomer of proteins. When you talk about lipids, these are not made up of repeating units. They are only made up of two things, glycerol molecule and 3 fatty acid chains. This is the structure of glycerol molecule. This is the structure of fatty acid chain. Now, one important thing. A fatty acid chain may or may not have a double bond in between. कहीं पर भी एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स भी हो सकती हैं. अगर डबल बॉन्ड है, अगर फैटी एसिड चेन के अंदर डबल बॉन्ड है, it is called an unsaturated fatty acid chain. Unsaturated fatty acid. अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन कार्बन की सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये बन जाएगा. अपनी मर्जी से आप कार्बन बना लें. आपने अगर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना है, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं खुद से,
अपनी मर्जी से नंबर ऑफ कार्बन बना लें और हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें। आपको पता है 4 बॉन्ड्स बना सकता है कार्बन, और आखिर में आपने यही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाना है। सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। दिखने में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा हो, लेकिन एक्चुअली बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आपने एक एंड पे कार्बोक्सिलिक एसिड ड्रॉ किया, दिस इज द ग्रुप, उसके साथ कार्बन ड्रॉ कर लें, और हर कार्बन के साथ जितनी बॉन्ड्स बच रही हैं वो हाइड्रोजन की, हर कार्बन की 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करनी है आपने, तो जितनी बॉन्ड्स बच गई वो सारी हाइड्रोजन की। ये सिंपली एक फैटी एसिड चेन आपने ड्रॉ कर ली। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर इससे भी ज्यादा सिंपल है, 3 कार्बन, तीनों के साथ OH, और बाकी जो बॉन्ड्स बची वो हाइड्रोजन की। ये आपको यहां पे नजर आ रहा है, 3 कार्बन, तीनों के साथ OH, बाकी जो बॉन्ड्स बची वो हाइड्रोजन की। दिस इज ग्लिसरॉल एंड दिस इज फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड में देयर इज अ डबल बॉन्ड, तो वो कौन सा फैटी एसिड होगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर अगर डबल बॉन्ड ना हो तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। लिपिड्स, हमारे पास इनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? देखिए, हमारी बॉडी गिवन द चॉइस, हमारी बॉडी हमेशा प्रेफर करेगी टू यूज कार्बोहाइड्रेट्स एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। We would always prefer glucose, C6H12O6, over lipids. Lekin, in certain conditions, fatty acids can also be used, sorry, not just the fatty acids, the entire lipid molecule can be used as respiratory substrate. और ये और ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तकरीबन 15 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज करेगा, और 1 ग्राम लिपिड, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, दिस इज लिपिड, तकरीबन 39 किलो जूल्स एनर्जी रिलीज करेगा। तो आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। लिपिड्स और ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स वुड रिलीज लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द लिपिड्स। Lipids release more energy, but they are used as the storage of energy, long term storage of energy. Lipids are stored under our skin, around our organs. अगर बहुत ज्यादा लिपिड का स्टोरेज हो जाए तो इंसान ओबीज हो जाता है, ओवरवेट हो जाता है, फिर ओबीज हो जाता है, फिर एक्सट्रीमली ओबीज हो जाता है। अगर आप लिपिड को कम करना चाहते हैं, द ओनली ऑप्शन इज आप ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट्स का इनटेक कम से कम कर दें, ताकि योर बॉडी इज फोर्स्ड टू यूज लिपिड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसे कंज्यूम करना शुरू करे ताकि आपकी बॉडी, वरना अगर आप ग्लूकोज देते रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स देते रहेंगे, आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती रहेगी, वो यूज ही नहीं करेगी लिपिड को, लिपिड स्टोर्ड रहेगा, बाकी जो बच जाएगा मजीद लिपिड बनेगा, मजीद स्टोर होगा। अच्छा, यहां पर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाई जा रही है, जो मैं आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं। इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बनता है, H और OH के दरमियान बॉन्ड बनेगा, तो ये वाटर बन के निकल जाएगा, और ऑक्सीजन डायरेक्टली कार्बन से बाइंड कर लेगा। ये OH और ये H आपस में बॉन्ड करके वाटर बना देंगे, और ऑक्सीजन क्योंकि अकेला हो गया, कार्बन भी अकेला हो गया, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। इस ऑक्सीजन और इस कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना ली। इसी तरह सेम चीज यहां पर भी होती है, सेम चीज यहां पर भी होती है। इसी तरह से ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन्स आपस में ज्वाइन होती हैं। इस रिएक्शन को ही हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, जो मैं 3 दफा नाम ले चुका हूं पहले। प्रोटीन्स भी इसी रिएक्शन से बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो भी इसी रिएक्शन से बनते हैं। यानी अगर डाइसैकेराइड बनना है तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी यही रिएक्शन होता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसमें से भी एक तरफ से OH निकलता है, एक तरफ से H निकलता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के वाटर बना देते हैं, और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, मेन दोनों ग्लूकोज आपस में जुड़ जाते हैं। जो जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, एक तरफ से OH निकलेगा, एक तरफ से H निकलेगा। अब आप इमेजिन कर लें ये कंडीशन कि OH चला गया यहां से, H चला गया, अब ये ऑक्सीजन अकेला हो गया, ये कार्बन अकेला हो गया, ये आपस में बॉन्ड कर लेंगे, जो कि आपको यहां पे नजर आ रहा है। ऑक्सीजन और कार्बन आपस में बॉन्ड कर रहे हैं। इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं।
एसिड और अल्कोहल के बीच की बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड होती है। ये अल्कोहल ग्रुप था, ये एसिड ग्रुप है। दिस इज अल्कोहल ग्रुप, दिस इज एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होती है, दिस इज एस्टर बॉन्ड। लिपिड्स का काम क्या है? एनर्जी स्टोरेज, इंसुलेशन भी करते हैं, अंडर द स्किन स्टोर होते हैं, तो ये इंसुलेट भी कर रहे होते हैं आपकी बॉडी को। इसके बाद फूड टेस्ट है, लेकिन यहां तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो पहले हम उसे एड्रेस करेंगे, फिर हम फूड टेस्ट की तरफ जाएंगे। विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती तो कोई परेशानी की बात नहीं है इसमें। आप मुझे बताएं कि क्या चीज समझ में नहीं आई। अर्शमान, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाइफा, कोई क्वेश्चन है आपका? हाइफा, नो क्वेश्चंस। लोजेन, do you have any questions? Zainab, No. Ahmed, do you have any questions? No, sir. Hania, do you have any questions? Aima, do you have any question? कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बताएं मुझे। मैं रिपीट कर दूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई मसला नहीं है इसमें। माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप लोग भी बता देंगे ना, क्योंकि आपको सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा तो आप भी बता देंगे। चलें, ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं फूड टेस्ट। आपके पास जो फूड टेस्ट हैं ये इंतहाई सिंपल हैं। मैंने आपको बताया था बेनेडिक्ट्स टेस्ट किस लिए यूज होता है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट इज ओनली फॉर रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सब बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। और इस टेस्ट को हम रिड्यूसिंग शुगर टेस्ट यहां पे लिखा हुआ है, इसका असली नाम बेनेडिक्ट्स टेस्ट है। बेनेडिक्ट्स टेस्ट, इसमें हम बेनेडिक्ट्स रिएजेंट यूज करते हैं। ब्लू कलर का ये एक रिएजेंट होता है। आप लैब में जा रहे हैं, यू हैव टू इमेजिन दिस सिचुएशन, यू आर एंटरिंग द लैब, there is a test tube here, the teacher wants you to find out if there is any reducing sugar. Now remember, sucrose is not a reducing sugar. The table sugar that we have, that is not a reducing sugar. उसको आप बेनेडिक्स से टेस्ट नहीं कर सकते, बेनेडिक्स का कोई इंपैक्ट नहीं होगा उस पर। लेकिन reducing sugars जितनी भी हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, वो सब reducing sugars हैं। You have this test tube in the lab, the teacher wants you to find out if there is any reducing sugar present in this or not. You can simply put a few drops of Benedict's reagent in this. You can gently swirl it, gently shake it. Now you have to heat it. आपने इसे तकरीबन 60 to 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है कुछ मिनट्स के लिए, और उसके बाद कलर चेंज ऑब्जर्व करना है। दोबारा से रिपीट करूंगा प्रोसीजर। You have this test tube, you have to find out if there is any reducing sugar in it or not. You're going to add a few drops of Benedict's reagent. Then you're going to gently shake it. Then you're going to heat it. How are you going to heat it? Well, you can heat it in open flame as well, but the preferred method obviously would be to use water bath, thermostatically controlled water bath. आप उसमें heat करेंगे इसे, you're going to observe the color change. अब क्योंकि इसका ओरिजिनल कलर ब्लू है, रॉयल ब्लू कलर का होता है बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, अगर आपने कभी देखा हो तो ब्लू ओरिजिनल कलर है इसका। अगर ये ब्लू ही रह जाएगा, that means the test is negative. But if the test is positive, it may turn green. Green would mean there are traces of sugar. बहुत ही कम reducing sugar मौजूद है। और अगर ये येलो हो जाएगा तो आप कहेंगे लो अमाउंट ऑफ reducing sugar. अगर ये ऑरेंज हो जाएगा आप कहेंगे मीडियम अमाउंट ऑफ reducing sugar is present in the given test tube. और अगर ये ब्रिक रेड कलर का नजर आता है आपको तो आप कहेंगे हाई अमाउंट ऑफ reducing sugar is present. Blue is negative. Green traces, only traces. Yellow, low amount. Orange, medium amount. Red, high amount. बताइए।
किसको समझ में नहीं आया बेनेडिक्ट टेस्ट? यही पूरी डिटेल यहां पर भी लिखी हुई है, जो मैंने अभी आपको बताई है, यही पूरी डिटेल यहां पर लिखी हुई है। जिसको समझ में नहीं आया सिर्फ वो बोलेंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास, जिसको समझ नहीं आया सिर्फ वो बताएंगे मुझे कि नहीं समझ आया सर। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। दूसरा टेस्ट है हमारा प्रोटीन के लिए, इससे भी ज्यादा आसान। यहां पे तो आपको हीट करना पड़ रहा था, प्रोटीन टेस्ट में हीट भी नहीं करना। टेस्ट ट्यूब दी जा रही है, आपसे कहा जाता है जी फाइंड आउट करें इसमें कोई प्रोटीन है या नहीं है। बहुत सिंपल तरीका, you're going to add, now this time you're going to add biuret reagent, biuret reagent ऐड करेंगे आप इसमें। बायोरेट रिएजेंट भी ब्लू कलर का है, लेकिन रॉयल ब्लू नहीं है, थोड़ा सा डार्क ब्लू होता है, जैसा ये जिस कलर से ये ड्रॉ हुआ है थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर का होता है। आपने वो इसमें ऐड किया, शेक किया और कलर चेंज देखा, बस। न हीट करना है न कुछ और करना है। You're just going to add a few drops of biuret reagent. You're going to gently shake it and you're going to observe the color change. If it remains blue like the original, it is negative. That means there is no protein. And if it turns purple, now purple may also be called lilac. Sometimes it may also be called mauve color. लेकिन मैं इसे पर्पल ही कहूंगा। अगर ये पर्पल हो जाता है, आप कहेंगे the test is positive, there is protein present. That's it. ब्लू और पर्पल दो ही कलर ऑप्शन है, ब्लू नेगेटिव, पर्पल पॉजिटिव। हीट भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसके अंदर बायोरेट रिएजेंट डालना है, शेक करना है और ऑब्जर्व करना है कलर चेंज को। तीसरा टेस्ट, बायोरेट में तो मेरे ख्याल से सवाल होगा ही नहीं। आयोडीन उतना ही आसान, जितना प्रोटीन का टेस्ट आसान है उतना ही आसान। अगेन आपको एक टेस्ट ट्यूब दी जाती है, आयोडीन टेस्ट इज फॉर स्टार्च। आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है या नहीं, आपने यूज करना है आयोडीन सॉल्यूशन। नाउ आयोडीन सॉल्यूशन एक्चुअली इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन गैस, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड विच इज पाउडर। ये आयोडीन सॉल्यूशन कहना वैसे एक्चुअली गलत है, लेकिन क्योंकि हम ये गलतुल आम है तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, किताबों में भी आपको आयोडीन सॉल्यूशन नजर आता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सही बोलने का दिल कर रहा हो तो आप इसे आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन कह सकते हैं। ये असल में सही नाम होगा इसका, आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। खैर, आपने सिंपली क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन इज ब्राउन इन कलर, ऑरेंज ब्राउन। You're just going to add, what are you trying to find out? If there is any starch present in the given solution or not. You're going to add a few drops of iodine solution. Again, you don't have to heat. You just gently swirl it and you will see if there is any color change. If it stays its original color, which was orange brown, that means the test is negative. There is no starch. But if it turns blue black, this means the test is positive. This means that there is starch present in the given solution. लिपिड इथेनॉल इमल्जन टेस्ट, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बाकी से मुख्तलिफ हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इतना नहीं है, आपको एक ही दफा में समझ में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आयोडीन और बायोरेट टेस्ट बहुत ही ज्यादा आसान है तो उनके मुकाबले में थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए, वी नो दैट लिपिड्स आर नॉन पोलर एंटिटीज। नॉन पोलर मींस दे एक्चुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अगर आप पानी में तेल डाल दें वो डिसॉल्व नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। लिपिड्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज दे आर नॉन पोलर। हम इन्हें हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, दे हेट वाटर, दे आर अफ्रेड ऑफ वाटर। हाइड्रोफोबिक मीन्स दे फियर वाटर, लेकिन इसके कहने का मतलब यह है कि दे डू नॉट इंटरैक्ट विद वाटर, दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। बट lipids can dissolve in non-polar solvent like ethanol. बस यही प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है इनकी, इनके टेस्ट के लिए हमने यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि लिपिड्स वाटर में डिसॉल्व
नहीं होते, एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं। यही प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है। आपने लिपिड को देना है धोखा। कैसे देंगे लिपिड्स को धोखा? आप इसे कहेंगे एथेनॉल है, एथेनॉल है, एथेनॉल है, आखिर में आप इसे कहेंगे वाटर है। यानी कि आपने लिपिड्स को डाल दिया एथेनॉल में। आपको टेस्ट ट्यूब दी जा रही है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें लिपिड है या नहीं है। आपने डाल दिया इसमें एथेनॉल, एब्सोल्यूट एथेनॉल डाल दिया। एथेनॉल डालने के बाद आप इसे शेक करेंगे, लेकिन इस दफा जेंटली नहीं, विगरसली शेक करेंगे। विगरसली शेक करेंगे। इफ देयर इज एनी लिपिड प्रेजेंट, इट वुड डिसॉल्व इन एथेनॉल, क्योंकि आपको पता है लिपिड एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाता है। अगर इसमें लिपिड होगा तो वो उस एथेनॉल में डिसॉल्व हो जाएगा। आपने एथेनॉल डाला और आपने इसे शेक किया, विगरसली शेक किया, तो अगर इसमें लिपिड मौजूद था तो वो एथेनॉल में डिसॉल्व हो गया। ओके, हो गया। आगे, एथेनॉल में डिसॉल्व होने के बाद आप इसे डाल देंगे वाटर में। अब यहां पे होना है चेंज। देखिए, एथेनॉल तो मिक्स हो सकता है वाटर के साथ। एथेनॉल मिक्सेस विद वाटर। तो जब आपने ये एथेनॉल विच हैज डिसॉल्व्ड लिपिड, जब आप ये वाटर में डालेंगे, एक बीकर ऑफ वाटर के अंदर डाल देंगे, एक टेस्ट ट्यूब ऑफ वाटर में डाल देंगे, तो एथेनॉल तो इसका मिक्स हो जाएगा वाटर के साथ, लेकिन उसके अंदर जो लिपिड मौजूद था, जो डिसॉल्व था, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता। वो सरफेस पे आ जाएगा, फॉर्मिंग अ वाइट क्लाउडी सस्पेंशन, और उससे आपको पता चल जाएगा कि लिपिड ओरिजिनल सॉल्यूशन में मौजूद था। द टेस्ट इज पॉजिटिव। अगर आपको व्हाइट क्लाउडी इमल्जन नजर नहीं आता है, अगर आपको क्लियर लिक्विड नजर आता है, तो आप कहेंगे टेस्ट नेगेटिव है। यही पूरी डिटेल यहां पर आपको नजर आएगी। एब्सोल्यूट एथेनॉल डाला आपने, शेक किया, अगर उसमें लिपिड मौजूद था तो वो डिसॉल्व हो चुका होगा। अब आप इस एथेनॉल को वाटर में डाल दें। अगर आपको क्लाउडी सस्पेंशन नजर आ रहा है, व्हाइट क्लाउडी इमल्जन नजर आ रहा है, दैट मींस द टेस्ट इज पॉजिटिव। और अगर आपको क्लियर लिक्विड नजर आएगा तो टेस्ट इज नेगेटिव। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आईजीसीएससी, डीसी पिप। विटामिन सी का टेस्ट करते हैं, जिसे हम डीसी पिप टेस्ट भी कहते हैं। थोड़ा सा डीसी पिप आपने गिवन सैंपल में डालना है। अगेन आपके पास टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब में आपसे कहा जा रहा है, आपने फाइंड आउट करना है इफ देयर इज एनी विटामिन सी। आपने उसमें डीसी पिप, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, ये इसका पूरा नाम है बाय द वे, डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल। ये डीसी पिप सॉल्यूशन आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लेट से डाल दिया, आपने कुछ कतरे डालने। ब्लू कलर, अगर डीसी पिप ओरिजिनली ब्लू कलर का था, अगर ये ब्लू कलर गायब होना शुरू हो जाए, इसका मतलब विटामिन सी मौजूद है, टेस्ट पॉजिटिव है। और अगर वो ब्लू ही रह जाए, इसका मतलब टेस्ट नेगेटिव है। खत्म। ये यहां तक मुझे बताइए, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग घबरा रहे हैं सवाल पूछने से। आपको कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इतना क्लियर तो मैं समझाता नहीं हूं जितना आपको समझ में आ रहा है। जैनब, क्या कंफ्यूजन है? Nothing. हाइफा, क्या चीज समझ में नहीं आई? क्योंकि वाटर में वो डिसॉल्व नहीं होता लिपिड, पहले उसे डिसॉल्व करना है, ताकि बाद में जब वाटर में डालें तो वो ऊपर आ जाए। वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वो वैसा ही रहेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि लिपिड है या नहीं है? दैट्स व्हाई यू डोंट ऐड। और किसी ने क्या सवाल पूछा है? यस, इवन फॉर डाइसैक्राइड्स, माल्टोस के लिए भी आप कर सकते हैं, गैलेक्टोस लैक्टोस के लिए भी आप कर सकते हैं बेनेडिक्ट्स, क्योंकि वो रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। डाइसैक्राइड भी शुगर होता है, मोनोसैक्राइड भी शुगर होता है, पॉलीसैक्राइड शुगर नहीं होता। आयमा, क्या कंफ्यूजन है? क्या चीज समझ में नहीं आई है आयमा? Reducing agents are
आपने केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा होगा. रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके आयमा. तो अगर आप किसी चीज को सब्सटेंस ए को सब्सटेंस बी से रिएक्ट कराएं, सब्सटेंस ए को आपने रिएक्ट कराया सब्सटेंस बी से, जिसकी वजह से सब्सटेंस ए रेड्यूस हो गया. रेड्यूस हो गया का मतलब क्या है? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया, या इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, या इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया. ये तीनों ही रिडक्शन है. तो आपने ए को बी से रिएक्ट कराया और ए रेड्यूस हो गया. तो ए को किसने रेड्यूस किया? बी ने. तो बी क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट. तो रेड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जब आप उन्हें किसी चीज से रिएक्ट कराते हैं तो वो उसे रेड्यूस कर देती हैं. यानी अगर आपने ए को रेड्यूसिंग शुगर से रिएक्ट कराया, ग्लूकोज से रिएक्ट करा दिया रेड्यूसिंग शुगर, तो उसकी वजह से ए रेड्यूस हो जाएगा. लेट्स से ए प्लस 2 था, यहां पे ए प्लस हो जाएगा. पॉजिटिव चार्ज कम हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है इसके अंदर. इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी रिडक्शन है. केमिस्ट्री है ये, बेसिक केमिस्ट्री है. इसके बाद डीएनए का स्ट्रक्चर है. डीएनए भी एक पॉलीमर है. जिस तरह प्रोटीन्स पॉलीमर हैं, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीमर्स हैं, इस तरह डीएनए इज आल्सो अ पॉलीमर. आप इसे सिंपली न्यूक्लिक एसिड कह सकते हैं. डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. असल जो मटेरियल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड. प्रोटीन इज अ मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट मटेरियल, lipid material, nucleic acid is a material. One of the types of nucleic acid is DNA, the other type is RNA. डीएनए किस चीज का पॉलीमर है जी? प्रोटीन तो अमाइनो एसिड का पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेक्राइड्स का पॉलीमर है. डीएनए किस चीज का पॉलीमर है? डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. न्यूक्लियोटाइड्स ये क्या होते हैं? तीन चीजें हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर. सबसे बीच में शुगर, क्योंकि 5 कार्बन वाली शुगर है. ग्लूकोज 6 कार्बन वाली शुगर है, उसे हम हेक्सोस शुगर कहते हैं. ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसे हम पेंटोस शुगर कहते हैं. पर्टिकुलरली फॉर डीएनए डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, लेकिन वो भी पेंटोस शुगर है. आरएनए में राइबोज शुगर होती है, वो भी पेंटोस शुगर है. तो एक पेंटोस शुगर होगी सेंटर में, एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक तरफ नाइट्रोजीनस बेस होगी. नाइट्रोजीनस बेस 4 तरह की होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन. आपने याद रखना है AGCT. लेट्स से ए है, वो ए भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है. चाहे तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन याद रख लें, लेकिन कम से कम AGCT याद होना जरूरी है. लेकिन डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है. एक स्ट्रैंड ये है, यहां पर देखें आपको न्यूक्लियोटाइड पूरा नजर आएगा. नाइट्रोजीनस बेस, T इज द नाइट्रोजीनस बेस, दिस इज द पेंटोस शुगर एंड दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप. ये एक न्यूक्लियोटाइड joined with another nucleotide, joined with another nucleotide, और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स कंटिन्यू होते हैं. यहां पर भी एक न्यूक्लियोटाइड joined with another nucleotide, joined with another nucleotide, और इस तरह से ये कंटिन्यू होंगे ऊपर. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपको नजर आते हैं. यहां पर तो आपको 3 न्यूक्लियोटाइड्स इधर और 3 इधर, टोटल 6 न्यूक्लियोटाइड्स नजर आ रहे हैं, या 3 पेयर्स नजर आ रहे हैं. हमारा जो एक्चुअल डीएनए पूरा स्ट्रक्चर है उसमें 3.2 बिलियन पेयर्स नजर आते हैं आपको. तकरीबन 3.2 बिलियन. एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए. और इसका स्ट्रक्चर ऐसे सीधा सीधा नहीं होता, ऐसे नहीं होता. ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं इस तरह से. इसे हम कहते हैं डबल हीलिक्स. द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज लाइक अ डबल हीलिक्स. इसके बाद वाटर है. बस स्ट्रक्चर ही अभी फिलहाल हमने जानना है. न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड इस तरह से ज्वाइन होते हैं. अच्छा, हमने क्योंकि सारी बॉन्ड्स का नाम पढ़ा है, यहां पर दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो बॉन्ड है जिससे दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजीनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिससे न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनती है, जिससे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है. इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर. लिपिड्स में थी एस्टर बॉन्ड, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड. ग्लूकोज ग्लूकोज की जो बॉन्ड थी कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट वाज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक, पेप्टाइड, एस्टर. दिस बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिससे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन होते हैं.
वाटर की प्रॉपर्टीज हैं, आपको ये बात पता होगी पहले से, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। हमारी बॉडी में वाटर का काम क्या है कि वो चीजों को डिसॉल्व करे। हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं, हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में, क्योंकि वाटर है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं। प्लांट के वैक्यूल्स के अंदर बहुत सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं, लिम्फ में चीजें डिसॉल्व होती हैं, टिश्यू फ्लूइड में चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो वाटर एक सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। वाटर ट्रांसपोर्ट मीडियम है। प्लाज्मा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है। नॉट जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, अमाइनो एसिड्स भी ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, एंटीबॉडीज भी ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। रिएजेंट के तौर पे भी काम करता है, खुद रिएक्ट भी कर सकता है वाटर, जैसे आपको फोटोसिंथेसिस में नजर आता है। वाटर खुद रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये रिएक्शन है, वाटर खुद रिएजेंट के तौर पे काम कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, और ये साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी है। अच्छा, वाटर की एक और प्रॉपर्टी बताऊं, रेजिस्ट्स टेम्परेचर चेंज। हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो मेंटेन कर सकते हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर कंटेन करती है। 70% हमारी बॉडी वाटर है तकरीबन। हमारी बॉडी 70% वाटर है। अगर पूरा वाटर आखिरी कतरे तक आपकी बॉडी से निकाल लिया जाए, आपका वजन 70% कम हो जाएगा तकरीबन। तो हम इस वजह से टेम्परेचर चेंज को रेजिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में प्राइमरीली वाटर है। इसके बाद क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन अभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आपको मौका है। अब ये जो हमारी रिकॉर्डेड वीडियो है, इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर आ गया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। तो अगर आपने कभी एज अ रेफरेंस ये वीडियो देखनी हो, मैं इसका नाम रखूंगा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंप्लीट।